लेकिन इसे पिछली स्लाइड पे तो नहीं जा सकते हो। यहाँ पिछली स्लाइड पे स्टार्ट हो रहा है। ये है तुम्हारा जिसमें तुम हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास 11 बायोलॉजी स्टूडेंट्स। यस, can you hear me? Yes, I can't see much students online. Yes, it is the biology session going on. Class 11 biology students. Good afternoon. I am Monica Malhotra, PGT Biology from KB Push Bihar, New Delhi. And today I am here for class 11 biology session on chapter Animal Kingdom, the fourth chapter of your syllabus. And we are going to have 11th session of this chapter on 12th of May 2020. Yesterday there was some technical issue in Facebook, so I couldn't log in. I couldn't go live for the session, so we couldn't do yesterday's session. Today I am going to do the same session which was planned for yesterday. So biology students, here we go for the today's session of Animal Kingdom, part 11. First of all, a quick recap. There are some questions which are based on our last session, in which we studied about Pisces and its two classes, chondrichthyes, cartilaginous fish, and osteichthyes, bony fish. You know, Pisces is the superclass, right? And it includes two classes, chondrichthyes and osteichthyes, that is cartilaginous and bony fish. So now we are going to start with the recap session. First question, gill slits are separate and without operculum in which class of superclass dash? ओके, सो सुपर क्लास यहाँ आप पाइसेस समझ लीजिए, यहाँ पाइसेस लिखना चाहिए था, ठीक है? नहीं तो अगर आपको सुपर क्लास ही नहीं पता होगी तो कैसे बताएंगे? तो सुपर क्लास पाइसेस है यहाँ पर, ठीक है? आई हैव करेक्टेड इट इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज द आंसर स्लाइड. So gill slits are separate and without operculum in class dash of superclass Pisces. Yes. वैसे तो ऑपरकुलम पाइसेस में ही होता है, तो आपको सुपर क्लास भी गेस कर लेनी चाहिए, बट चलो मैंने आपको क्लू के लिए बता दिया, सुपर क्लास पाइसेस है. ओके, तो बताइए सुपर क्लास पाइसेस की कौन सी क्लास में ऑपरकुलम नहीं होता? गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरकुलम. यस, नाउ आंसर मी दिस. यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. यस, द करेक्ट आंसर इज ऑपरकुलम किसमें नहीं होता है? ऑपरकुलम कार्टिलेजिनस फिश में नहीं होता. सो करेक्ट आंसर गोज लाइक yes, chondrichthyes. Yes, chondrichthyes is the correct answer. Pisces super class की chondrichthyes class में operculum present नहीं होता. Cartilaginous fish में operculum नहीं होता. Yes. Okay, सही spellings इसके याद करो बेटा. आप सही spelling नहीं लिख रहे हो. Yes, Udit, cartilaginous fish is correct, but you must all remember the biological term for this is chondrichthyes, right? Now, second question. Swim bladder is present in dash. कौन सी? आपको ऑप्शन दे दी गई है, कार्टिलेजिनस और बोनी फिश. इन दोनों में से किस में स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है? यस यस, यश यादव इज करेक्ट. इट इज बोनी फिश. नहीं मधु, बोनी फिश में प्रेजेंट होता है, ठीक है? कार्टिलेजिनस में स्विम ब्लैडर नहीं होता, बोनी फिश में होता है. और इसका रीजन मैंने आपको ये बताया था कि बोनी फिश का जो एंडोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ हेवी बोन्स. ओके, सो वो सिंक हो सकते हैं, बहुत हेवी एंडोस्केलेटन है, इसलिए उनको फ्लोटेड रखने के लिए, उनको बायंसी प्रोवाइड करने के लिए स्विम ब्लैडर होता है, जिसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये, जिसमें एयर भर जाती है और वो उनकी बॉडी को बायंसी प्रोवाइड करता है. बोनी फिश इज द करेक्ट आंसर. ओके, yes, Nityanjali and Aryan, you are correct. It is bony fish. Now we come to the third question. The biological name of fish with a poisonous sting at the base of its tail is. ये कार्टिलेजिनस फिश है, मैं आपको क्लू दे रही हूँ, और ये इसमें टेल के बेस पे एक पॉइजनस स्टिंग होता है. मैंने आपको इसका डायग्राम भी दिखाया था, स्टिंग भी दिखाया था, और उसका पर्पस भी बताया था, राइट? तो आप मुझे सिर्फ उस फिश का बायोलॉजिकल नेम दे दीजिए. Yes, biological name of that particular fish
which has a sting at its tail. Yes, very good. Udit is correct. Trigon. Trigon is the name. Yes, Veena Rai is also correct. Very good. So trigon is the name of the fish, and common name is stingray. It is a type of ray. Ray fish है ये. Fourth question. Heterocircle tail is the characteristic feature of class dash of superclass dash. अब यहाँ भी सुपर क्लास नहीं बताइए, और आपको पता है हमने कौन सी सुपर क्लास पढ़ी है. दोनों ऑप्शंस बताइए अब आप मुझे. हेट्रोसर्कल टेल जो है वो कौन सी क्लास का फीचर है और वो कौन सी सुपर क्लास में आती है? यस यस हर्षिता, ट्राइगॉन इज करेक्ट. राजकुमार इज ऑल्सो करेक्ट. मधु इज ऑल्सो करेक्ट. वंदना, ट्राइगॉन सही आंसर दे रहे हो बेटा. सही है आपका ये. यस, गुड आफ्टरनून. ओके, प्लीज नाउ आंसर द फोर्थ क्वेश्चन. Heterocircle tail is the characteristic feature of. No, that is not the correct answer. Yes, शंकर सही है. ट्राइगॉन बिल्कुल सही. बेटा हेट्रोसर्कल टेल वो होती है जो एसिमेट्रिक टेल होती है, एसिमेट्री शो करती है जो. और आपको पता है एसिमेट्रिक टेल कौन से क्लास का पर्टिकुलर फीचर है? इट इज कॉन्ड्रिक्थीज, कार्टिलेजिनस फिश. ऑस्ट्रिक्थीज जो आप बता रहे हो, ऑस्ट्रिक्थीज में तो होमोसर्कल टेल होती है, यानी कि बिल्कुल सिमेट्रिकल टेल होती है. हेट्रोसर्कल यानी कि एसिमेट्रिकल, जिसमें अपर लोब जो है वो बड़ी और लोअर लोब छोटी होती है. तो क्योंकि एसिमेट्रिकल टेल है इसीलिए नाम हो गया हेट्रोसर्कल टेल. इट इज फाउंड इन क्लास कॉन्ट्रिक्थीज और सुपर क्लास पाइसेस. ओके, सो हियर आर द आंसर्स. देखो ये सारे आंसर्स हैं. हेट्रोसर्कल टेल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास कॉन्ट्रिक्थीज और सुपर क्लास पाइसेस. ओके, सो ऑल द आंसर्स आर गिवन इन दिस स्लाइड. ओके, चलिए अब आंसर दीजिए. ये आंसर आपके चारों क्वेश्चंस के हो गए. मैंने आंसर्स की स्लाइड भी आपको शो कर दी है. अब हम चलते हैं आज के सेशन पे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट क्लास. अब देखिए इसका हायरार्की क्या है. फाइलम कौन सा पढ़ रहे हैं हम? कॉर्डेटा. सब फाइलम क्या है उसमें? वर्टिब्रेटा. सुपर क्लास कौन सी है? टेट्रापोडा. ठीक है, 4 पैरों वाले टेट्रापोडा. सुपर क्लास इज टेट्रापोडा. और उसमें कौन सी क्लास पढ़ने जा रहे हैं आज हम? एम्फीबिया. कल हमने कौन सी सुपर क्लास पढ़ी थी? पाइसेस. इससे पहले हमने सुपर क्लास पाइसेस में फिश पढ़ी थी. आज हम दूसरी सुपर क्लास पढ़ने जा रहे हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा की. ठीक है, ये कौन सी है? सुपर क्लास टेट्रापोडा. टेट्रापोडा सुपर क्लास है ये. और इसमें क्लास कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? एम्फीबिया. एम्फीबिया यानी कि एम्फीबियंस. एम्फीबियंस. एम्फी मतलब दोनों, बियन मतलब रहने वाले. तो दोनों जगह रह सकते हैं ये. दोनों जगह कौन सी? लैंड एंड वाटर. तो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, इसीलिए इनका नाम हो गया एम्फीबिया, एम्फीबियंस. ओके ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल the amphibians, the names of the common amphibians for you to know about the examples. देखिए salamandra, ये tailed amphibian होता है. इसमें tail भी present है, देख रहे हैं आप. तो head और trunk और tail में body divided है. और salamander इसका commonly कहते हैं, और salamandra इसका scientific name है. The next is buffo. Buffo is toad. ठीक है, this is toad. तो ये कॉमन टोड है बफो. मेलानोस्टेक्टस इसका कॉमन, इसका साइंटिफिक नेम है. बफो इज द जीनस, मेलानोस्टेक्टस स्पीशीज. वो आपको यहाँ नहीं दी है, आपको सिर्फ कॉमन नेम दे दिया टोड. ओके, अब एक और एग्जांपल एम्फीबियन का सबसे कॉमन एग्जांपल है ये फ्रॉग. सबने देखा होगा ये. एंड द साइंटिफिक नेम इज राना. राना टिग्रीना इसका स्पीशीज है. राना टिग्रीना. राना इज द जीनस. ओके, बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ जीनस दिया है. ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ये और हाइला एंड इच्थायोफिस. हाइला एंड इच्थायोफिस. नाउ हाइला ट्री फ्रॉग है. ये आप ट्री पे रहता है. देख रहे हैं आप, ग्रीन कलर का है. कैमोफ्लॉज करने के लिए, इसकी कैमोफ्लॉजिंग के लिए ये ग्रीन कलर का हो जाता है. ठीक है, और ये हो जाता है मतलब ये है ही ग्रीन कलर का. इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इट हैज अंडरगॉन एन एडेप्टेशन इन व्हिच इट हैज डेवलप्ड अ ग्रीन कलर टू मैच विद द सराउंडिंग्स so that no predator can catch him very easily. Okay, then ichthyophis. Ichthyophis is the limbless amphibian. इसमें आप देख रहे हो कोई limbs नहीं है. frog में 4 limbs का एक पेयर होता है, hind limbs का एक पेयर होता है, लेकिन ichthyophis में limbs नहीं है. क्यों नहीं है?
ये इसकी एक स्टोरी है। एवोल्यूशन के दौरान इसके लिम्स जो है गायब हो गए हैं। क्यों गायब हो गए हैं? बिकॉज इसकी जो हैबिट्स है बरोइंग हैबिट्स है। ये बरोज में रहता है, क्योंकि बरोज में रहता है, बहुत ही डीप टनल में बरोज होते हैं इसके। तो बरोज में घुसने के लिए वो लिम्स जो थे वो फ्रिक्शन कॉज करते थे, अटकते थे बरो में घुसने के लिए। तो इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इट हैज लॉस्ट इट्स लिम्स टू कंटिन्यू द बरोइंग हैबिट। ओके, चलिए इससे पहले कि हम आगे चले, मैं आपको थोड़ा सा ये कुछ बताना चाहती हूँ कि टोड और फ्रॉग को आप कैसे पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे कौन टोड है कौन फ्रॉग है? बहुत सिमिलर दिख रहे हैं ये, ठीक है। देखिए, फ्रॉग की जो स्किन होती है वो बहुत ही मॉइस्ट स्लिपरी होती है, ठीक है। स्लिपरी स्किन होती है, आप इसको जल्दी से पकड़ नहीं पाएंगे, स्लिप हो जाता है हाथ से ये, ठीक है। म्यूकस रिच स्लिपरी स्किन इज देयर। देन बफो को आप आराम से पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ही ड्राई, वॉटी और रफ स्किन होती है। ये आराम से ग्रिप में आ जाता है, लेकिन हाँ, इसको पकड़ना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टोड्स दे आर पॉइजनस। तो वी शुड नॉट ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ एनी टोड बिकॉज वी डोंट नो वेदर इट इज अ पॉइजनस टोड और नॉट। ओके, फ्रॉग, दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप देख सकते हैं बफो और राना, इन दोनों का अगर स्नाउट, इनका हेड रीजन आप कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा ये जो फ्रॉग है इसका ट्राइंगुलर हेड है, देख रहे हैं आप, हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप। बफो का ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर है, ठीक है। इससे पता चलेगा कि इन दोनों में, इसको पहचान सकते हैं हम कैसे, क्योंकि हम कलर से नहीं इतना पहचान सकते बिकॉज फ्रॉग में कलर्स की बहुत वेरिएशन होती है। टोड जनरली ग्रेइश ब्राउन कलर के होते हैं, समटाइम्स दे आर गोल्डनिश येलो आल्सो, बट frogs they are green, orange, golden, brown. There are so many different variations in the coloration of frog. Okay, तो इसीलिए कलर के बेस पे पहचानने की गलती नहीं करेंगे हम, हेड स्नाउट रीजन के हम शेप से पहचानेंगे इनको। इसके अलावा जो इसकी स्किन होती है फ्रॉग की, बहुत ही वॉटी होती है, रफ होती है, ठीक है, ड्राई होती है, और इसकी स्किन स्मूथ और स्लिपरी म्यूकस रिच होती है। दिस इज वन मोर डिफरेंस विच helps us to differentiate between a frog and a toad. Okay, ये morphological differences से हाइला के बारे में बता दिया, एक टाइप का फ्रॉग है, ये ट्री पे रहता है इसीलिए कैमोफ्लेजिंग कर ली है इसने। देन rimless lizard भी हो गई। So these were the amphibians. Now we come to the main characteristics of the class amphibia. As the name indicates the amphi means dual, bios means life, ठीक है, मतलब इनकी डुअल लाइफ है। लाइफ साइकिल में कुछ समय ये लैंड पे बिताते हैं और कुछ समय पानी में बिताते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि लैंड में कब और पानी में कब। तो जब भी ब्रीडिंग सीजन होता है, इनको ब्रीडिंग करनी होती है, एग्स ले करने होते हैं, तो देन दे प्रेफर अ एक्वेटिक लाइफ। ओके, इनका लार्वा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनका लार्वा भी पानी में ही डेवलप होता है, फिश के जैसा होता है। लार्वा की पूरी डेवलपमेंट पानी में होती है। जब वो मेटामॉर्फोसिस अंडरगो करके अडल्ट बन जाता है तो लैंड पे आ जाता है। So this way they have a dual life on land as well as in water. Amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitats. Most of them, I am saying most of them, they have two pairs of limbs. Two pairs कैसे है? देखो, ये फोर लिम्ब का पेयर है, ठीक है, और ये पीछे हाइंड लिम्ब का पेयर है। ये सेलेमेंड्रा में भी ऐसे ही है, फोर लिम्ब का पेयर, हाइंड लिम्ब का पेयर। लेकिन अभी मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें मैंने आपको इच्थायोफिस दिखाया था, ये लिम्बलेस एम्फीबियन है, तो इसमें कोई भी लिम्ब नहीं है, इसीलिए कहा गया है most of the amphibians they have two pair of limbs because all amphibians do not have limbs. Okay, now the body is divided into head and trunk. अब ये भी एक जनरलाइज चीज है, ठीक है। देखिए, अगर हम फ्रॉग की बात करें तो ऑफ कोर्स फ्रॉग की बॉडी में ये इंटीरियर पार्ट पे हेड है, जिसमें इसके आईज, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, माउथ होता है और ब्रेन होता है, और पोस्टीरियर साइड पे इसका ये पूरा क्या है, ट्रंक है, ठीक है। ये तो इसका हेड और ट्रंक में इसकी बॉडी डिवाइडेड हो गई फ्रॉग की, ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट सेलेमेंडर, सेलेमेंडर की अगर हम बात करें तो सेलेमेंडर की बॉडी तीन भागों में मेनली डिवाइडेड है, हेड, ट्रंक एंड देयर इज अ लॉन्ग टेल आल्सो। ओके, तो इसीलिए हेड और ट्रंक जनरलाइज्ड डिवीजन नहीं है। दिस डिवीजन इज इन मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस व्हिच डू नॉट हैव अ टेल, and those amphibians which also have a tail, then their body is divided into three parts: head, trunk and tail, ठीक है। तो टेल में भी प्रेजेंट इन सम, द एग्जांपल है सैलेमेंड्रा। ओके, चलिए अब हम आगे इसके सेंस ऑर्गन्स पे चलते हैं। तो फ्रॉग को अगर हम टाइप स्टडी का एग्जांपल ले लें तो इसमें जो इसकी स्किन होती है फ्रॉग की, बहुत ही मॉइस्ट होती है, स्केललेस स्किन, कोई स्केल नहीं है इसके ऊपर,
It is without scale, very smooth. Okay, it is always moist. Okay, the eyes, they have eyelids. इसकी eyes में eyelids present होते हैं. ठीक है, eyelids जो है limiting movement कर सकते हैं, लेकिन eyelids present हैं. Okay, apart from eyelids, it also has a transparent membrane covering its eye. इसकी आंख को पूरा कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन. ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जितने भी लोअर एनिमल्स हैं सब में प्रेजेंट है, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं हमारे में भी प्रेजेंट है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, बट इट हैज गॉट रिड्यूस्ड. कैसे? आपकी आंख में जो कॉर्नर पे एक पिंकिश मेम्ब्रेन आपको दिखाई देती है, पिंकिश टिश्यू नजर आता है, दैट इज एक्चुअली द rudiment of nictitating membrane. Okay, it has lost its purpose here because we have got well defined eyelids which are movable and they are able to protect the eye, they are able to keep the eye clean and moist. So that is the main function of nictitating membrane. क्या करती है nictitating membrane? ये हमारे में वेस्टिजियल ऑर्गन बन गई है, लेकिन फ्रॉग में बहुत बहुत फंक्शनल है. ये पूरी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, आंख को कवर करती है, इसको पानी में आंख को डैमेज होने से बचाती है, वाटर करंट से. अदरवाइज भी ये आंख के प्रोटेक्शन का काम करती है. ठीक है, आंख को मॉइस्ट भी रखती है. तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का काम है. ठीक है, तो आईलिड्स के अलावा इसके पास ये मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है. अब सुनने के लिए इसके पास क्या है? कान है, लेकिन एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट होते हैं एम्फीबियंस में. दे हैव टिम्पेनम. Now what is this tympanum? Again, this is a membranous sheath. एक membranous sheath होती है जो vibrations को perceive करके कहाँ भेजती है? जो भी sound waves होती है उनको कहाँ भेजती है? Internal ear की तरफ भेजती है, और internal ear में वो आवाज सुनाई देती है. Okay, तो tympanum represents the ear in case of amphibians. Okay, next is about the internal viscera, about the internal organs. हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी. ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं है. ठीक है, हाँ आपका 7th चैप्टर में जरूर दिया हुआ है ये डायग्राम, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको थोड़े से इसके कंपोनेंट समझ में आ जाए. ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है. कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज देयर, स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड्स इनटू एनस. ओके, बट यहाँ एनस कहीं लेबल्ड नहीं है, आपको दिख रहा होगा. एनस की जगह क्या लेबल्ड है? क्लोएका. ठीक है, तो ये क्लोएका क्या होता है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपर्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट अपर्चर है. जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ये अपर्चर पाया जाता है. क्या है ये अपर्चर? आप देखिए, एलिमेंट्री कैनाल एंड्स इनटू क्लोएका. ठीक है, फिर आप देख रहे हैं, ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हैं आप. ये माउथ से ये पिंकिश जितनी कैनाल है, माउथ है, फिर आगे ईसोफेगस, देन ये स्टमक आ गया. स्टमक के बाद ये पूरा इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन आ गई. पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है पतली वाली, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन है. लार्ज इंटेस्टाइन इज एंडिंग इनटू क्लोएका. ठीक है, क्लोएका से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है बाहर निकलता है. सिमिलरली अगर हम इसका ये देखें एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, ये तो एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट भी इसका कहाँ खुल रहा है जाकर? ये देखो, ये एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट कहाँ खुल रहा है? इट इज ओपनिंग इनटू क्लोएका. ठीक है, एंड सिमिलरली its reproductive tract is also opening into cloaca. तो 3 tracts, 3 systems एक common aperture में खुल रहे हैं. कौन कौन से? एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग भी क्लोएका है, देन यूरिनरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग भी इसकी क्लोएका में हो रही है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट की ओपनिंग भी क्लोएका में हो रही है. तो क्लोएका इज अ कॉमन अपर्चर टू एलिमेंट्री ट्रैक्ट, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. समझ में आ गई? तो एक्सटर्नल ओपनिंग इसकी तीनों ट्रैक्ट्स की यही है, ये क्लोएका है. ओके, नाउ रेस्पिरेशन. इसकी ब्रीदिंग जो होती है वो कैसे होती है? इसके पास 3 ऑर्गन्स है ब्रीथ करने के लिए, मेनली गिल्स, लंग्स एंड स्किन. हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रॉग की. आपको याद होगा फ्रॉग में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि इसमें एक लार्वा बनता है. लार्वा का नाम है टेडपोल लार्वा. फिश के जैसा होता है, पानी में रहता है. क्योंकि वो फिश के जैसा है, पानी में रहता है, इसीलिए ब्रीदिंग के लिए गिल्स होते हैं उसके अंदर. टेडपोल लार्वा हैज गिल्स इन इट. एडल्ट फ्रॉग में गिल्स लंग्स में बदल जाते हैं. मेटामॉर्फोसिस के दौरान जब लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट फ्रॉग बनाता है तो गिल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लंग्स में. ओके, तो इसका मतलब फ्रॉग में गिल्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ उसके लार्वा में होते हैं. फ्रॉग में लंग्स होते हैं. इसके अलावा फ्रॉग में स्किन होती है उसकी ब्रीदिंग के लिए. कैसे? लंग्स, लंग्स से वो तब ब्रीथ करता है जब वो टेरेस्ट्रियल मोड में होता है, जब वो जमीन पे रह रहा है. ठीक है, तो उस टाइम पर
जब टेरेस्ट्रियल हैबिट्स है उसकी तो लंग से ब्रीथ करेगा। स्किन से वो तब ब्रीथ करता है जब वो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में जाता है। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द लोअर वर्टिब्रेट्स, क्योंकि देखिए आपको मैंने फिश के बारे में बताया था कि वो पोइकिलोथर्म्स है, कोल्ड ब्लडेड है, अपनी बॉडी का कोई फिक्स टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती। ठीक है, इसी तरह फ्रॉग भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं रख पाते, इनका बॉडी टेम्परेचर भी वेरिंग है। बाहर गर्मी हो गई अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लेंगे, बाहर सर्दी हो गई अपने बॉडी का टेम्परेचर घटा लेंगे, लेकिन उतना ज्यादा ये नहीं कर पाते रेगुलेट, इसीलिए बॉडी का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं रख पाते हैं, इसीलिए ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? पोएकिलोथर्मस एनिमल्स। ओके, ऐसे एनिमल्स को एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए अडेप्ट करना पड़ता है। तो इनकी अडेप्टेशन क्या है? इन द एक्सट्रीम समर दे गो फॉर समर स्लीप विच इज कॉल्ड एस्टिवेशन, AESTIVATION, एस्टिवेशन। और गर्मियों में ये गर्मियों में जाते हैं ये एस्टिवेशन पे एक्सट्रीम हॉट में, और सर्दियों में एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में ये पहुंच जाते हैं हाइबरनेशन में। ठीक है, सो व्हेन द टेम्परेचर गोज वेरी लो देन दे गो फॉर हाइबरनेशन, दैट इज कॉल्ड द विंटर स्लीप। तो समर स्लीप क्या है? एस्टिवेशन। और विंटर स्लीप क्या है? हाइबरनेशन। ऐसे में ये सोते नहीं है। स्लीप तो इसलिए कह दिया है क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, सिर्फ बिल्कुल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ही चलती हैं, एनर्जी कंज्यूम करती हैं, बाकी जो पोस्टपोन की जा सकती हैं एक्टिविटीज वो सब बंद हो जाती हैं चलिए। जैसे दे ओनली ब्रीथ, देयर सर्कुलेशन गोज ऑन, देयर एक्सक्रीशन गोज ऑन, लेकिन जो एक्टिविटीज है जैसे रिप्रोडक्शन, ये एक्टिविटी जो है इनकी बंद हो जाती है। और फूड को भी पहले ही बहुत सारा अपनी बॉडी में रिजर्व फूड स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में इनको फूड अवेलेबल नहीं रहता। ठीक है, तो डाइजेशन की एक्टिविटी भी इनकी लिमिट हो जाती है ऐसे टाइम में। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान ये स्किन से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट वी कम टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपको दिख रहा होगा, ये आर्टरीज दिख रही हैं, इसकी वेन्स भी होती हैं, इसमें ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं। आर्टरीज कैरी द प्योर ब्लड, वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड, कैपिलरीज दे distribute the blood to the organs and collect the blood from the organs, okay, as usual. But their heart is, as you can see this heart, इसमें ऊपर का देख रहे हो आप, बहुत बड़ा पार्ट है और नीचे का पार्ट बहुत ही छोटा है। क्यों? क्योंकि ऊपर का पार्ट जो है दो चैम्बर्स में बट चुका है, दो ऑरिकल्स हैं इसके, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। ठीक है, इसे एट्रियम भी कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, लेकिन वेंट्रिकल एक ही है। वेंट्रिकल अभी दो नहीं बने, एक ही है। ठीक है, इसका मतलब इसके हार्ट में कितने चैम्बर है? 3। लेफ्ट साइड पे प्योर ब्लड, राइट साइड पे इम्प्योर ब्लड होता है हार्ट में। तो लेफ्ट एट्रियम में तो प्योर ब्लड होगा, राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड, लेकिन जब ये प्योर इम्प्योर ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तो मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने की वजह से वो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम हो जाएगी, और जब ये मिक्स ब्लड बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगी, इसीलिए इसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से एनर्जी नहीं बना पाता ज्यादा, और एनर्जी ना बना पाने की वजह से ही ये कोल्ड ब्लडेड नेचर का एनिमल है। समझ में आ गया? ये कोल्ड ब्लडेड इसीलिए। तो जितने भी एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे पाइसेस कोल्ड ब्लडेड है, एम्फिबियंस कोल्ड ब्लडेड है, आगे रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड पढ़ाऊंगी मैं। इन सभी में जो हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड को सेपरेटेड नहीं रख पाता, मिक्स हो जाता है ब्लड हार्ट में, इसीलिए ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंचती ऑर्गन्स में और उनका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है। दे कैनॉट जनरेट सो मच एनर्जी and that is why they are cold blooded. They do not have enough energy to maintain a constant body temperature. Okay, चलिए अब हार्ट 3 चैम्बर्ड है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, पोएकिलोथर्मस इसके लिए टेक्निकल टर्म बताई थी मैंने आपको। ठीक है, देख रहे हैं जो बच्चे कह रहे थे कि फ्रॉग में भी बैकबोन होती है, देखिए ये फ्रॉग में देखो बैकबोन दिख रही है, ये वर्टिब्री है इसके। ठीक है, देख रहे हैं पूरी बैकबोन दिख रही है इसकी, और ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये इसकी क्या है? ये इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये इसकी यहाँ ब्रेन है, और पीछे ग्रीन कलर का धागा पूरा इसका स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ओके। सो आफ्टर दिस नाउ वी कम टू द रिप्रोडक्शन इन एम्फिबियंस। एम्फिबियंस में जो सेक्सेस है वो सेपरेट होते हैं, मेल फ्रॉग इज डिफरेंट, फीमेल इज डिफरेंट। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, द गैमीट्स आर लेड इन द वाटर, गैमीट्स पानी में ले होते हैं। ठीक है, दे आर रिलीज्ड इन वाटर and male and female gametes they fuse with each other in water, so fertilization is external.
and they are oviparous, means these fertilized eggs they are covered with a membranous shell and then ये eggs जो है ले हो जाते हैं, ये एग्स जो है ये पानी में ही रहते हैं टिल देयर डेवलपमेंट, ठीक है। ये देखो आगे इसका एम्ब्रियो बन गया है, एम्ब्रियो बनने के बाद ये देखो छोटा सा टेडपोल लार्वा प्लांट्स को अटैच हो गया है, यही फीड करेगा ये, इसमें गिल्स डेवलप हो गए हैं टेडपोल लार्वा में, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे देखो फिश लाइक अपीयरेंस है इसकी, उसके बाद वो फ्रॉग लाइक बनने शुरू हो गया, हाइंड लेग्स पहले डेवलप हो गई, फिर फोर आर्म्स भी इसकी इसकी आर्म्स भी आ गई, ठीक है, यानी कि फोर लिम्स भी आ गए, पहले हाइंड लिम्स फिर फोर लिम्स, और धीरे धीरे देख रहे हो टेल देखो कैसे शॉर्ट होनी शुरू हो गई और फाइनली टेल गायब हो गई। ये पूरा प्रोसेस जिसमें एक लार्वा एडल्ट में बदलता है इसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ओके। तो डेवलपमेंट जिसमें कैसी हुई भाई, क्योंकि इसमें लार्वा डेवलप हो रहा है इसलिए डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लेकिन कई एनिमल्स ऐसे भी हैं एम्फिबियंस में जिनमें लार्वा नहीं बनता और डेवलपमेंट डायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट एम्फिबियंस में पाई जाती है। Now we come to reptilia. The next class is reptilia. Again, I must revise this hierarchy for you. Phylum हम कौन सा पढ़ रहे हैं? Chordata. Subphylum पढ़ रहे हैं Vertebrata. Super class Tetrapoda पढ़ रहे हैं जिनमें 4 limbs होते हैं। क्लास उसमें आ गई रेप्टिलिया, ठीक है। रेप्टाइल्स में ये कॉमन रेप्टाइल्स आपको दिखाए हैं मैंने, ये है टर्टल, कीलोन बोलते हैं इसको, देखो टर्टल, ये टेस्ट्यूडो है, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइल्स, आप सबने ये देखा होगा एक्वेटिक लाइफ टीवी पे दिखाते हैं, जूस में देखा होगा, ठीक है। टर्टल्स को तो लोग एक्वेरियम्स में भी रखते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले ये जान लें, अगर हमारे सामने टर्टल या टॉर्टोइज में से कोई आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे ये टर्टल है कि टॉर्टोइज। एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी यू मस्ट नो, क्योंकि अगर आपके साथ कोई फ्रेंड आपका नॉन बायोलॉजी का होगा और वो आपसे पूछेगा बता भाई ये टॉर्टोइज है कि टर्टल, तो कैसे बताओगे जब आपको ही पता नहीं होगा। तो आपको मैं बेसिक जानकारी दे देती हूँ। जो टर्टल होता है वो एक्वेटिक होता है, मरीन लाइफ में रहता है, मरीन वाटर में रहता है। जो टॉर्टोइज है वो ज्यादातर टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, और फ्रेश अगर पानी में रहता है तो फ्रेश वाटर में रहता है, इट इज नॉट फाउंड इन मरीन वाटर। ये छोटा होता है साइज में कंपैरेटिवली, और जो टॉर्टोइज होते हैं बहुत जायंट साइज के भी हो सकते हैं, ये कंपैरेटिवली टर्टल से बड़े होते हैं। तो ये देख रहे हो उसके पीछे इसके एक शेल है इसकी बैक पे, है ना, ये इसका डोर्सल साइड है, उस पे इट कैरीज अ शेल फॉर इट्स प्रोटेक्शन। दिस शेल इज कॉल्ड कैरापेस, इट इज कॉल्ड कैरापेस, ओके, टॉप शेल कहते हैं इसको। तो जो टर्टल का शेल होता है वो हार्ट शेप बनाता है, देख रहे हैं आप बीच में नॉच है, ये हार्ट शेप्ड होता है, जबकि जो टॉर्टोइज का शेल है वो ऑलमोस्ट ओवल शेप्ड होता है, ठीक है। तो कैरापेस इन टॉर्टोइज इज ओवल एंड टर्टल में हार्ट शेप्ड। टर्टल क्योंकि एक्टिव स्विमर्स होते हैं, पानी में रहते हैं ज्यादातर, इसीलिए इनके जो लिम्स है मॉडिफाई हो गए इनटू पैडल्स, ठीक है, जैसे ओर्स होते हैं पैडल्स की तरह, ताकि ये एक्टिवली स्विम कर सके। जबकि टॉर्टोइज को ज्यादातर लैंड पे रहना है तो इनके लिम्स जो है ये पैडल्स में मॉडिफाइड नहीं है, ठीक है। देन हेड जो टर्टल का है, जब ये अपने आप को अपना बचाव करना होता है इसको, तो ये अपने हेड को विड्रॉ करके कैरापेस के अंदर ले जाते हैं। टर्टल की खासियत ये है कि इसका कैरापेस इतना बड़ा नहीं है कि पूरा हेड उसमें घुस जाए, ये हेड का एंटीरियर पार्ट इसका बेचारे का कैरापेस से बाहर ही रह जाता है। When it tries to save itself from the predator and it withdraws its head under the carapace, then the full head is not withdrawn into the shell. Okay, it is only partially withdrawn into the shell, whereas tortoise can fully withdraw its head into the carapace. Okay, इसका protection पूरा है। Then some turtles they are even flesh eaters, herbivores भी होते हैं, flesh भी खा सकते हैं, लेकिन tortoise purely herbivores होते हैं, ये vegetation पे ही feed करते हैं, ठीक है। Turtles को बोलते हैं कीलोन, कीलोनिया, Midas is one common name, Chelonia is the genus, and Midas is the species. And Testudo is the scientific name of tortoise, ठीक है। तो इस तरह आप पहचान सकते हैं टर्टल और टॉर्टोइज में। Now some more reptiles, Chameleon, ट्री लिजर्ड। खास बात क्या है इसकी, ये गिरगिट है, अपना रंग बदल लेती है, अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से ही अपने रंग को बदल के कैमोफ्लॉजिंग कर सकती है, ये फिनोमेना कहलाता है कैमोफ्लॉजिंग। कैमोफ्लॉजिंग से ये अपने प्रेडेटर से अपने आप को सेव कर सकते हैं, ओके। दिस इज वॉल लिजर्ड, सबने देखी होगी, हेमिडेक्टाइलस, घरों में जो पाई जाती है छिपकली, ये वही है हेमिडेक्टाइलस, ठीक है। एंड दिस इज कैलोट्स, कैलोट्स इज गार्डन लिजर्ड, ये गार्डन में पाई जाती है, ठीक है। ग्रीनिश कलर की होती है पीछे, ग्रेइश ग्रीन कलर की, और इसका हेड कई बार फ्लोरेसेंट ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। इसमें बहुत वैरायटी पाई जाती है, प्योर ग्रीन भी होती है गार्डन लिजर्ड,
ठीक है, मैंने एक ऐसी वैरायटी शो की है जिसका हेड फ्लोरेसेंट ऑरेंज है, अदरवाइज इट कैन बी ग्रेइश, इट कैन बी ब्राउनिश, इट कैन बी green in color. It has variety of pigments in its body. Then crocodile and alligators also belong to class Reptilia. Crocodile और एलिगेटर ये भी बिल्कुल एक जैसे लगते हैं देखने में, तो ये भी बड़ी समस्या है कि अगर हमारे सामने क्रोकोडाइल या एलिगेटर में से कोई आए तो हम कैसे पहचाने ये क्रोकोडाइल है कि एलिगेटर है। तो एक बेसिक इसके फीचर्स देख लीजिए कि आप कैसे पहचान के बता पाएंगे, और एक बड़े अच्छे बायोलॉजी स्टूडेंट कहलाएंगे कि आप पहचान सके दोनों में से कौन क्या है। तो क्रोकोडाइल is grayish green in color, alligator is always black in color, ठीक है, alligator देखो ब्लैक कलर का है, ठीक है। यस सुजीत, क्रोकोडाइल इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेप्टिलिया, हम रेप्टाइल ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। ये क्रोकोडाइल जो होता है ग्रेइश ग्रीन कलर का होता है, देख रहे हैं आप, ग्रेइश ग्रीन कलर है इसका, और ये पूरा ही ब्लैकिश कलर का है, ओके। इसमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, ये इसका इस टीथ पूरा, इसका जो जॉ है पूरा बंद है, ठीक है, स्नाउट कहते हैं इसको आगे वाले पार्ट को, लेकिन यहाँ जो इसका फोर्थ टूथ होता है, लोअर जॉ का चौथा दांत, ठीक है, वो एक्सपोज ही रहता है, मुंह बंद करने पे भी वो दिखाई देता रहता है, अगर वो फुल्ली डेवलप हो गया है तो ग्रो करके दिखाई देगा, अगर यंग वन है तो उसका फुल्ली ग्रोन नहीं होगा कई बार। एडल्ट क्रोकोडाइल का जो फोर्थ टूथ है, 1 2 3 4 चौथा, ये हमेशा दिखाई देता है चाहे मुंह बंद हो जाए, ठीक है। यहाँ एलिगेटर जो है इसका सिर्फ ऊपर के दांत दिखाई देते हैं अगर मुंह बंद हो जाए, नीचे का कोई दांत दिखाई नहीं देता, ऐसे हम पहचान सकते हैं। इसका जो स्नाउट होता है, स्नाउट ये आगे के पार्ट को कहते हैं, नैरो होता है बहुत ही और टेपर्ड होता है। क्रोकोडाइल का स्नाउट नैरो है और टेपर्ड है, जबकि एलिगेटर का देख रहे हैं ब्रॉड है और राउंड है, ठीक है। इसमें जो इसमें जो यंग क्रोकोडाइल होते हैं उनमें लाइट और डार्क स्ट्राइप्स पाई जाती है, ठीक है, और इसमें जो यंग है दे आर यंग आर डार्क विद येलो स्ट्राइप्स, डार्क कलर के तो होंगे ब्लैक कलर के, लेकिन उन पर पीली पीली धारियां आपको दिखाई देंगी यंग क्रोकोडाइल्स में, ओके। अब कुछ और रेप्टाइल्स के बारे में, ये स्नेक्स हैं, ठीक है, तो आप सरपेंट्स के बारे में जानते हैं हम थोड़ा, ये नाजा है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कैसे पहचान सकते हैं हम कोबरा को, कोबरा कॉमन नेम है, नाजा इज द बायोलॉजिकल नेम। इसमें स्पेक्टिकल का ये टिपिकल सा सिंबल बना होता है नाजा में, तो ये इसकी खासियत है, ऐसे पहचानते हैं हम कोबरा को। देन दिस इज वाइपर, ठीक है, देखिए इसकी शरीर की धारियां, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक मार्क है, वाइपर है ये, वाइपरा इज द साइंटिफिक नेम, वाइपर इज कॉमन। बैंगरस इज द क्रेट, तो ये तीनों ही बहुत सबसे पॉइजनस स्नेक्स में आते हैं, सो दीज आल्सो आर अंडर रेप्टाइल्स। चलिए अब हम रेप्टाइल्स की कुछ खास विशेषताएं जान लें। द क्लास नेम्ड आफ्टर देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, क्यों बोलते हैं रेप्टिलिया इसको, क्रीपिंग क्रीचर्स हैं, ये क्रीप करके चलते हैं, क्रॉल करके चलते हैं जमीन पर, लोकोमोशन इनका बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए रेप्टिलिया कहा जाता है। लेटिन में रेपियर और रेप्टम, इसका मतलब होता है टू क्रीप और टू क्रॉल, तो लेटिन से आया है इनका नाम रेप्टिलिया। क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाई रेप्टिलिया आर कॉल्ड सो, ठीक है, ओके। देन दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जमीन पे पाए जाते हैं, कुछ स्नेक्स वाटर में भी रहते हैं, एक्वाटिक स्नेक्स भी होते हैं, बिल्कुल सही है, पर मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल। और उनकी बॉडी ऊपर से अगर आप देखें क्रोकोडाइल या स्नेक की बॉडी, तो आपको बहुत ही ड्राई स्किन मिलेगी, कॉर्निफाइड हॉर्नी स्किन मिलेगी, और ये स्किन जो है ये क्या है, इनकी एपिडर्मिस का ही मॉडिफिकेशन है, एपिडर्मल लेयर है सबसे ऊपर की जो स्केल्स में बदल गई है, या इन्हें बोलते हैं स्क्यूट्स। दीज एपिडर्मल स्केल्स आर कॉल्ड स्क्यूट्स, ये उभरे हुए होते हैं, इनकी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। और अगर लिम्स होंगे तो 2 पेयर होंगे, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स का एक पेयर, फोर लिम्स का पेयर, हाइंड लिम्स का पेयर। स्नेक्स में लिम्स एब्सेंट हो गए हैं, ठीक है, लेकिन क्रोकोडाइल में आपने देखा, टेस्ट्यूडो में देखा, उन सब में लिम्स है, ओके। चलिए अब इनके सेंस ऑर्गन्स की बात करें, बहुत कंफ्यूजन रहती है हमें, इनको दिखता है कि नहीं, इनको सुनता है कि नहीं, कैसे सुन सकते हैं, ये कान होते हैं कि नहीं, तो अभी इन सब क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इनका जो सेंस ऑफ विजन है और स्मेल वो बहुत वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये, और ये स्मेल भी कर सकते हैं। सुनने के बारे में हमें इनकी प्रॉब्लम होती है, तो अब देखो सबसे पहले स्मेल कैसे कर सकते हैं इसके बारे में खास बात है। स्नेक्स दे हैव एन एडिशनल ऑर्गन फॉर स्मेलिंग, क्या बोलते हैं उसको, जैकॉब्सन्स ऑर्गन। ये मेडिकल एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, आपकी एनसीईआरटी में तो ये टर्म मिसिंग है, ठीक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट थी तो मैंने आपको दिखा दी है।
देखिए इसकी बाइफिट टंग है, मुंह से बाहर आती है बाइफिट टंग, ठीक है। देन ये जेकॉब्सन ऑर्गन है इसका, आई के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, जेकॉब्सन ऑर्गन। और जेकॉब्सन ऑर्गन से देख रहे हैं आप, ये नर्व्स जा रही हैं ब्रेन को। ये कौन सी नर्व्स है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करती है, स्मेल की इंफॉर्मेशन कैरी करती है। दीज आर ऑल्फैक्टरी नर्व्स, दे कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ स्मेल। ओके, अब देखिए स्मेल कैसे करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है ये। इन ऑर्डर टू स्मेल स्नेक्स डार्ट आउट द स्लेंडर फॉर्क टंग, फटाफट अपनी ये जीभ को बाहर निकालते हैं, और आसपास की हवा से जो सेंटेड पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्डर के जो स्मेल के पार्टिकल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स इनकी टंग पे चिपक जाते हैं, ठीक है। और फिर इस टंग को वापस ले जाके ये अपने मुंह के ऊपर, इनका जो अपर पैलेट होता है, मुंह के ऊपर इनके जेकॉब्सन ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उसके दो छेद होते हैं जिसमें जेकॉब्सन ऑर्गन लॉज्ड होता है। तो टंग को अंदर ले जाते हैं और एंड दे प्रेस द टंग अगेंस्ट टू स्मॉल हॉलोज इन द रूफ ऑफ देयर माउथ। अपने माउथ के अपर सरफेस पे दो छेद होते हैं, दो हॉलोज होते हैं, जहां जेकॉब्सन ऑर्गन प्रेजेंट है, वहां ये अपनी टंग को दबाते हैं, ठीक है। और जेकॉब्सन ऑर्गन में सेंसर्स हैं जो स्मेल को सेंस कर सकते हैं। तो ये केमिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो जेकॉब्सन ऑर्गन पे पहुंचते हैं और वहां जाके स्मेलिंग हो जाती है, ठीक है। नाउ बहुत सारे रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो अपने टंग को टेक्टाइल ऑर्गन्स की तरह भी यूज करते हैं, टच रिसेप्टर्स, टच करके देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ रेप्टाइल्स दे हैव पुअर डेवलप्ड सेंस ऑफ हियरिंग, उनमें सेंस ऑफ हियरिंग नहीं होती, और वाइब्रेशंस के थ्रू ही वो जो चीज है उसकी वाइब्रेशंस को रिसीव करते हैं और पता लगाते हैं कि आगे क्या है, वो दे कांट हियर, ठीक है। ओके, रेप्टाइल्स दे कैन, कुछ ऐसे भी रेप्टाइल्स हैं जो सुन सकते हैं, मैं स्नेक्स की बात कर रही हूँ, दे कैन नॉट हियर, बट इन केस ऑफ गार्डन लिजर्ड एंड अदर लिजर्ड्स दे कैन हियर। दे हैव गॉट a structure called tympanum, मैंने आपको ये पहले भी बताया, फ्रॉग में टिम्पैनम होता है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, ये एक स्किन का, ये एक यू कैन से इट्स अ मेम्ब्रेन, ठीक है, इट्स अ मेम्ब्रेन व्हिच परसीव्स द वाइब्रेशंस, ऑडियो वेव्स, एंड they just pass it on to the internal ear. So the reptiles that which those can hear, they have tympanum. Tympanum vibrates in response to the sound waves and transmit the sound waves to the internal ear. ठीक है, इनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, कोई पिन्ना नहीं होता, और टिम्पैनम जो है वही इनके ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल लेयर्स हैं जो नोज का काम करते हैं, स्नाउट है ये इनका, इसमें ये देखो हेड रीजन में आई है, टिम्पैनम है। तो गार्डन लिजर्ड हैज गॉट ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स। अब इनके हार्ट की बात कर लें, जैसे एम्फीबियंस में हमने पढ़ा हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, ऐसे ही रेप्टाइल्स में भी हार्ट में 3 ही चैम्बर्स हैं। ये देखिए लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, और ये कॉमन वेंट्रिकल है। लेकिन ये जो कॉमन वेंट्रिकल है, इसमें आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक ये एक वॉल डेवलप होनी शुरू हो गई है, डिविजन होना शुरू हो गया है। ये वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में डिवाइड होने लगा है। ये लाल रंग शो करता है कि लेफ्ट साइड है, ये प्योर ब्लड कंटेन कर रही है। ये ब्लू कलर शो करता है कि ये राइट साइड है और इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही है। तो यहाँ तो प्योर इम्प्योर ब्लड लेफ्ट और राइट एट्रियम में अलग अलग है, लेकिन वेंट्रिकल में इस पॉइंट पे जाके ब्लड मिक्स हो जाता है, क्योंकि जो डिविजन है वेंट्रिकल्स की ये कंप्लीट नहीं है रेप्टाइल्स में। लेकिन एक रेप्टाइल ऐसा है जिसमें ये दोनों वेंट्रिकल्स के बीच की वॉल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। वो कौन सा है, क्रोकोडाइल, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड इन रेप्टाइल्स बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल में ये चैम्बर चारों बन चुके हैं, और एट्रियम भी 2 है और वेंट्रिकल भी 2 है, ऐसा क्रोकोडाइल्स में है, ठीक है। देन रेप्टाइल्स आर अगेन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोएकिलोथर्मस कहते हैं इनको हम। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स दे कैन आल्सो शेड देयर स्किन, ठीक है। ये अपने जो स्केली स्किन होती है उसको शेड करते हैं, क्योंकि ये स्केली स्किन बहुत ही रिजिड होती है। जब ये इनकी बॉडी ग्रो करती है तो स्किन इनकी ग्रोथ को लिमिट करती है, इसीलिए ये अपनी स्किन को, पुरानी स्किन को उतार देते हैं और अपने साइज के मुताबिक नई स्किन को जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। एपिडर्मल जो लेयर है इनकी, वो नई स्किन फॉर्म कर देती है, पुरानी स्किन उतर जाती है। आपने सुना होगा कि लिजर्ड्स और स्नेक्स अपनी स्किन को छोड़ देते हैं, दे चेंज देयर स्किन, ठीक है। ओके, सो लाइफ साइकिल मैंने एक शो कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। टर्टल इज वन एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल्स। सेक्सेस सारे रेप्टाइल में सेपरेट होते हैं, मेल रेप्टाइल, मेल एनिमल, फीमेल एनिमल अलग अलग होता है। फर्टिलाइजेशन जनरली इंटरनल होती है।
दे आर ओविपेरस, एग्स ले करते हैं. कुछ स्नेक्स ऐसे हैं, वाइपर जैसे कुछ स्नेक्स होते हैं जो विविपेरस नेचर के होते हैं, ठीक है. अदरवाइज दे आर ओविपेरस, राइट. देन डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, देयर इज नो लार्वल स्टेज. ओके, तो यहाँ देखिए लाइफ साइकिल जो है टर्टल की कैसी है. एग्स ले हुए, हैचिंग हुई, हैचिंग के बाद जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब यंग वन, दे आर नॉट लार्वी, यंग वन बने, यंग वन से अडल्ट बन गए. तो इस तरह से ये ओविपेरस एनिमल का एक लाइफ साइकिल है. देन अभी हमने रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा और एम्फिबियंस के बारे में पढ़ा, ठीक है. अब हम जरा दोनों को कंपेयर कर लें, क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है. पहले हम देखें इनमें सिमिलर फीचर्स क्या है. दोनों ही वर्टिब्रेट्स हैं, बिल्कुल. दोनों ही एग लेइंग है, बिल्कुल सही है. दोनों ही रेप्टाइल और एम्फिबियंस एग ले करते हैं, ओविपेरस है. दोनों ही वॉक कर सकते हैं, दे हैव गॉट लिम्स. अगर लिम्स नहीं भी हैं तो क्रीप कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं और वॉकिंग कर सकते हैं. दे हैव लंग्स इन देम, बिल्कुल सही है. दोनों में ही जो ब्रीदिंग का ऑर्गन है वो लंग्स है, ठीक है. देन एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स में डिफरेंसेस क्या है. एम्फिबियंस की स्किन मोस्टली मॉइस्ट होती है. रेप्टाइल्स में जो स्किन है, और खास बात एम्फिबियंस की स्किन के ऊपर स्केल्स नहीं होते, दे हैव स्केल लेस स्किन, स्मूथ स्किन. रेप्टाइल्स की स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं, ठीक है. प्लस रेप्टाइल्स की स्किन मॉइस्ट नहीं है, ड्राई है, ठीक है. ये एम्फिबियंस पानी में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं. रेप्टाइल सिर्फ लैंड में रहते हैं. देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे क्रोकोडाइल है, वो रह सकता है पानी में, ठीक है. जैसे स्नेक्स है कुछ, वो पानी में रह सकते हैं. एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है. देन दे, इन केस ऑफ एम्फिबियंस दे ले एग्स इन वाटर. इनके शेल बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, एग के ट्रांसपेरेंट होते हैं. रेप्टाइल्स में जमीन पे ही ये ले करते हैं एग्स. क्योंकि जमीन पे ले करते हैं एग्स, इसीलिए इनको खतरा ज्यादा है. एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन से इन्होंने एग्स को बचाना है, इसलिए इनका शेल बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है. देन इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एम्फिबियंस में पाई जाती है, और जो इनके लार्वी हैं गिल्स से ब्रीथ करते हैं, जबकि एडल्ट्स में स्किन या लंग ब्रीदिंग ऑर्गन है. जबकि रेप्टाइल्स में डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड दे हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग. हैरानी होगी आपको जान के, स्नेक, रेप्टाइल और जितने भी रेप्टाइल मैंने आपको बताए सब में लंग्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए, ठीक है. एम्फिबियंस दे कैन स्विम एंड दे कैन जंप, व्हेयरएज रेप्टाइल्स दे कैन स्लिदर, मतलब मूवमेंट करते हैं ये, या ये क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है. zigzag मूवमेंट करके चलते हैं या फिर क्रॉल कर सकते हैं. सो दिस इज द वे दे कैन मूव. Okay, so that ends with today's presentation, with today's session. I hope you have understood the main features of reptiles and amphibians. I don't want to continue further, otherwise I would have started with aves, but I want that you should sink in the characteristics of amphibians and reptiles today. इनमें comparison, similarity सबको अच्छे से जान लो, और एनसीईआरटी में जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको एक बार जरूर पढ़ लो, ठीक है. So after this we come to the last segment of our session, that is the assignment part. First question is, list any 3 advancements of reptiles over amphibians with examples. Reptiles में ऐसे क्या एडवांस्ड फीचर्स हैं जो एम्फिबियंस में नहीं है, ठीक है. आप इनके बारे में सोचो और इनके बारे में बताओ, ठीक है. कोई 3 एडवांसमेंट सोच के बतानी है, एग्जांपल्स भी बतानी है. ये सब मैंने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में ही दिए हुए हैं, ठीक है. क्वेश्चन 2, व्हाई एम्फिबियंस आर नेम्ड सो. आपको मैंने एम्फिबियंस के बारे में बताया, व्हाई दे आर नेम्ड सो. अब तो आपको ये भी पता चल गया व्हाई रेप्टिलियंस आर नेम्ड सो, ठीक है. तो इसका आंसर देंगे आप. व्हाट आर स्क्यूट्स. स्क्यूट्स क्या होते हैं. गिव एग्जांपल्स ऑफ द एनिमल्स इन व्हिच स्क्यूट्स आर फाउंड. तो आपको एग्जांपल बताने उन एनिमल्स के. नेम अ लिम्बलेस एम्फिबियन. ओके, दिस यू कैन आंसर. यस उदित, बोथ हैव टिम्पेनम. एम्फिबियंस में भी टिम्पेनम होता है और रेप्टाइल्स में भी टिम्पेनम होता है, ठीक है. हाँ जी, और कोई डाउट. बिल्कुल वंदना, आपने सही क्वेश्चन पूछा. स्नेक्स में भी रिब्स और स्पाइन सब कुछ होती है भाई. स्नेक भी वर्टिब्रेट है, उसमें वर्टेब्रल कॉलम है, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी है, ठीक है. सब कुछ है, ओके. चलिए अभी मेरे को लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट. नेम अ लिम्बलेस एम्फिबियन. वो लिम्बलेस एम्फिबियन का नाम बता दो जरा, अभी बताया था मैंने. Yes, very good. Udit, you are right. Ichthyophis is the correct answer. That is a limbless amphibian. Very good. So, I hope you have enjoyed the session, and those who did not enjoy, please post me the reason why they did not enjoy.
Either these are vacations you don't want to study or the chapter is difficult. Okay, please tell me. Okay, thank you. Take care and stay